Namaskar and once again welcome to our channel निशी से लर्निंग। आज हम लोग स्टैंडर्ड सेवेंथ चालू करने वाले हैं। यस, वी आर बिगिनिंग विथ स्टैंडर्ड सेवेंथ एंड फर्स्ट इज वंदना, दैट इज प्रेयर। प्रेयर वाला पार्ट आपको सिक्स स्टैंडर्ड में भी था, अब सेवेंथ स्टैंडर्ड में भी उन्होंने फर्स्ट पार्ट वंदना यानी प्रेयर दिया है। बिकॉज कोई भी काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, करेक्ट? ओके, सो दे हैव गिवन हस हियर ઉપરોક્ત શ્લોકાનું શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે વારંવાર ગાન કરો. મીન્સ યુ હેવ ટુ ઓફન read these shlokas, okay, with correct pronunciation, because now you have come in 7th standard, so we will expect good clear pronunciation, good reading, writing without any grammatical mistakes in 7th standard. Okay, so let's begin. As usual, first we are going to read all the prayer and then we will see their meaning one by one. Okay. या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिः नमोऽस्तु ते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। Okay, so the first shlok is dedicated, or we can say is praising Lord means Goddess Saraswati. जो पहला आपका श्लोक है वो बुद्धि की देवता, नॉलेज की देवता सरस्वती के लिए उन्होंने बताया है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता means the goddess who resides in all beings in the form of knowledge, vidya rupena samsthita. Ya devi sarvabhuteshu, the goddess who resides in all beings, means sarvabhuteshu means in all human beings, in the form of samsthita, in the form of what? Vidya rupena, in the form of knowledge. So Saraswati resides in all beings in the form of knowledge. Namastasyai 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 namo namaha. Tasyai, I bow to her, I bow to her, I bow to her. Again and again, namo namaha. Again and again. So Goddess Saraswati is residing in all our human beings in the form of knowledge. हम लोग बोलते हैं कि सरस्वती जिह्वा अग्रे, मतलब at the tip of the tongue she resides. That's why we have to say all the positive things related to us and also others. वो दिन में 2 बार बैठती है, ऐसे बोला जाता है. So we should always say good things. Okay, so I bow to her again and again. Okay. The second is Pathami. Now you know Pathami means I am studying. So what I am doing? So Pathami Sanskrutam Nityam means I read Sanskrit daily. Pathami means I read Sanskrutam Nityam. Nityam means daily. So I read Sanskrit daily. Vadami Sanskrutam Sada. I always speak in Sanskrit. Vadami, Pathami. I always read Sanskrit daily. I always speak in Sanskrit. So Vadami means speak. I always speak in Sanskrit. Dhyayami Sanskrutam Samyak Vande Sanskruta Mataram.
See, Sanskrit is very ancient language. It is also known as mother of all languages. So, Aham Vande, mother of all languages, Aham Vande. ध्यायामि संस्कृतम सम्यक. I meditate upon Sanskrit language. मतलब मेडिटेट मतलब मैंने ये प्रण लिया है कि मैं ऑलवेज संस्कृत में बोलूँ, संस्कृत में पढ़ूँ, मैं संस्कृत का ही आचरण विचरण जो भी है सब कुछ संस्कृत में ही करूँ. सो आई मेडिटेट संस्कृतम सम्यक. सम्यक मीन्स नाइस. वंदे संस्कृतम संस्कृत मातरम. आई बाउ टू द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, दैट इज संस्कृत. So we can say this shlok is, you can say, devotion to Sanskrit language. So this is related to Saraswati Ma. Correct? This shlok is dedicated to Sanskrit language which you are learning. Correct? Okay. Third is, we always say शुभं करोति कल्याणम. जब हम लोग शाम में दिया बत्ती करते हैं तो हम लोग yes we say this शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम. ये बहुत इफ़ यू नो दिस, हमारे आजी आजोबा मतलब ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इवन आवर पेरेंट्स, वो हमें बोलते हैं कि शाम को चलो दिया बत्ती करी है तो अभी शुभं करो तो कल्याणम. ये श्लोक, ये जो प्रेयर है, मीन्स वी कैन से दिस एज इट इज़ डेडिकेटेड टू द ऑस्पिशियसनेस ऑफ दिवा, मीन्स दिया. ओके. शुभं करोतु कल्याणम. जो हम लोग दिया लगाते हैं तो वो दिया क्या करता है, तो वो कल्याण करता है. इट ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस टू आवर होम. सो वी कैन से कल्याणम मतलब ऑस्पिशियसनेस. Also, it brings arogyam. Arogyam means good health. Also, that diya will bring dhana sampadam, means wealth. The light we lamp at during evening period, it will bring auspiciousness, it will bring good health and wealth. शत्रु बुद्धि विनाशाय. जो हमारे मन में वाइट विचार होते हैं, गलत विचार होते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं. इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द इंटेलिजेंस ऑफ एनिमीज एज वेल. बट वी कैन टेक इट एज कि हमारे मन में जो कुविचार होते हैं वो धीरे 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 खत्म होते जाते हैं और हम लोग सिर्फ अच्छा ही विचार करने लगते हैं. सो दीपक ज्योति नमस्तुते. सो आई बाउ डाउन टू दैट डिवाइन लाइट. सो इट इज़ डेडिकेटेड टू दैट डिवाइन लाइट, आई कैन से. देखो, हमारे हिंदू संस्कृति में हम लोग सब चीज़ों में भगवान होते हैं ऐसे देखते हैं. इसीलिए अगर किसी चीज़ पर हमारा पैर भी पड़ता है तो हम लोग तुरंत वी से सॉरी लाइक दैट. ओके. सो दिस इज फॉर द डिवाइन लाइट. मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम. मैंने गीता ध्यान श्लोक जो डाला हुआ है वो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. आई थिंक स्तोत्र मंत्र वाली प्लेलिस्ट है, उसमें ये होगा. तो गीता ध्यान श्लोक का जो लास्ट श्लोक है, वो लास्ट श्लोक ये वाला है, मूकम करोति वाचालम. मतलब यहाँ पे जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है उनकी महानता, या फिर इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा. दिस श्लोक इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा. तो कृष्णा की महानता यहाँ पे बताई है. वॉट ही डू, मूकम करोति वाचलम. जो मूक है, जो बोल नहीं सकता, हु इज़ अ म्यूट पर्सन, बाय कृष्णाज ग्रेस ही कैन बी वाचालम. वाचालम मतलब फिर वो बोलने लगेगा. ही कैन बी इलोक्वेंट. सो वाचालम मतलब हु कैन स्पीक. मूकम मतलब म्यूट, जिसको ही डिसेबिलिटी यू कैन से. सो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम. पंगुम मीन्स अ लेम पर्सन. पंगुम मीन्स लेम. लेम मतलब जो चल नहीं सकता. तो जो चल नहीं सकता
वो लंघयते गिरिम मतलब वो माउंटेन्स भी क्रॉस कर रहा है। गिरिम मतलब माउंटेन्स, पर्वत। सो जो चल नहीं सकता वो माउंटेन्स, पहाड़ चढ़ रहा है, क्रॉस कर रहा है। जो बोल नहीं सकता वो, उसको बोलने की एबिलिटी आ रही है। यत कृपा तमहम वंदे, यत कृपा तम अहम वंदे, अहम वंदे मतलब मैं उस परमानंद, जो परम आनंद देते हैं, कौन? माधव। माधव मतलब श्री कृष्ण, माधव मतलब श्री कृष्ण। तो उस माधव को, उस परमानंद को मैं वंदे मतलब आई बाउ डाउन टू दैट सुप्रीम लॉर्ड। Okay, I bow down to Madhava, that is Lord Krishna, the embodiment of supreme bliss. यत कृपा, ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथा। तम, तम मतलब ये द्वितीय विभक्ति, तम अहम वंदे परमानंद माधवम। Okay, so I hope you have understood all the meanings of all the 4 श्लोकास। पहला सरस्वती, दूसरा संस्कृत, तीसरा डिवाइन लाइट मतलब दीवा, और चौथा भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने ये श्लोक बताए हैं। यू हैव टू बाय हार्ट दिस विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। शेयर विथ युअर फ्रेंड्स। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।